Assalamualaikum fellows, we're back with the third session of the day and this session is about customer discovery. जो डिजाइन थिंकिंग की जर्नी हमने शुरू की है आज से, उसी के अंदर इस टॉपिक को आज हम फर्दर बिल्ड कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में शेयर किया और तला ने दूसरे में कि कस्टमर इज द बॉस, कस्टमर चाइनीज कहते हैं कस्टमर इज द गॉड, जन साहब ने हमसे शेयर किया। सो कस्टमर से शुरू करें। सो कोई भी इनोवेशन प्रोसेस, डिजाइन थिंकिंग, स्टार्टअप जो है उसको कस्टमर से शुरू होना चाहिए। एंड वी रियली डिलाइटेड कि आज हमारे साथ हैं मिस तौबिंदा उस्मान। शी इज पार्ट ऑफ सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम ऑन बोर्ड मिस तौबिंदा। Thank you very much, Jimran. And it's pleasure to be a part of this series. और बड़ी अच्छी चल रही है अभी तक। आई लिसन टू फ्यू टॉक्स, बड़ी अच्छी सब लोगों ने इस पे अपनी डिस्कशंस और अपने जो इनसाइट्स हैं वो डिलीवर किए हैं। वंडरफुल। और हमारे साथ हैं मेजर जनरल बैद में ज़किया, वीसी लॉर गेट्सन यूनिवर्सिटी। सर थैंक यू वेरी मच। और कस्टमर डिस्कवरी की जर्नी को, इसी लेक्चर को आज बिल्ड करनी होगी ताबिंदा हमारे साथ। सो ओवर टू यू मिस ताबिंदा। Okay, Ji. Hi, everyone. So the topic is based on who is your customer. हमारा कस्टमर कौन है? हम स्टार्टअप्स जब भी स्टार्ट करते हैं, so we always have one key question in the mind that who is gonna buy the product or services, कौन avail करेगा. So let's start the topic. Whenever we think of people that नेचुरली हमारे स्टार्टअप या हमारे बिजनेस में कौन से लोग होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? सो एक्सक्यूज मी तमिल, अगर काइंडली आप इसको स्लाइड शो में कर दें क्योंकि ऑडियंस के लिए फिर वो ज्यादा विजिबल हो जाता है। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इज इट ओके नाउ? यस, दिस इज ग्रेट। ओके, सो whenever we talk about the general public or general context of customers, so it's always like this, that the customer want everything. They says we want everything and we want it right now, we want it for free. This is the common thing, but we cannot afford it as a startup or as a business. We cannot afford such kind of customers, so we need to really screen out the things कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक मार्केट होगा जो कि मेरा प्रोडक्ट खरीद रहा होगा या उसके मुताबिक मुझे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, इम्प्रोवाइजेशन होनी है उसकी। सो इस सेशन में हमारे कुछ की टॉपिक्स हैं। दीज आर द की टॉपिक्स in which 5 major elements are there. Who is your customer? We will be talking about who is the existing market for which this course or these contents or this talk can be. What are the learning goals? And then there is an example. Example is based on showroom, and I titled it as Lemonade and Lamborghinis, or there are 5 steps of customer journey. So this is the core of today's session. These are the 5 steps, and then this is not enough. So there are a lot more, and for the road there is a final exam. But obviously, I'll not be taking the final exam, so there'll be a Q&A session. Okay, so who is this talk for? This talk is basically for the entrepreneurs who wants to start their own business, for the inventors, and for intrapreneurs. So intrapreneurs are the people who are currently working with the organizations and working the job in an amazing way. And then it's all about action. Just discovering about the customers, that who's gonna be my customer. We really need to be very much action oriented instead of sitting in the office and thinking about that who's my customer. And then there is a spirit of pirate. It's a surprise. So it's a big example. I'll share the context with. So these are some of the goals of today's session. One is to conduct the market segmentation. We will understand that how to conduct the market segmentation. Then select the beachhead market, develop and understand the customer profile, and estimate the TAM, its total addressable market. Okay, total population में से कितना size होगा market का जिसको मैंने select करना है. Then I'll be establishing context where you will learn some of the key, although this time is not sufficient for us, but some of the key points that how we can develop the persona of our customers. And afterwards, finally, it's your end goal. It's to find homogeneous groups of people so that we can
finally say that this is the mob who's going to buy my company's product or is ready to avail the services of my company. So these are some of the learning goals. Here we come. It's the example of lemonades and Lamborghinis. What that example is, basically, there was a person. I just want to make it very short. There was a person in US and he wanted to start his own showroom of Lamborghinis. So what he started initially, he raised capital through some of his by the help of some of his reference groups or the people around him. So it was a hard job for him to raise that capital to start that showroom. Finally, he did it. So after watching a lot of financial concerns about the business or all the other things, he was totally unable to find out the right customer for his own showroom, because the people who were having Volvo, they reached to him and asked that we are going to give you the equal amount that you will be charging for the Lamborghini, but you should please help us in getting the car, a Volvo, repaired. For a small time of passage of time, the person thought twice or thrice that let me raise money, let me have more money. So whatever happens, no issue. Who is going to see me that if it's a Lamborghini or it's a Volvo truck? So it's not a big deal. It's not a matter of image. So it's about raising profits. सो बिजनेस का एक सबसे बड़ा जो डिलेमा है हमारे कंट्री में भी, वो भी यही है कि हम लोग ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, किसी भी तरह का कस्टमर आ गया, ठीक है, गेट द मनी एंड डू द थिंग्स जो भी वो चाह रहा है कस्टमर. सो उसके पास कुछ सेकंड्स थे सोचने के लिए कि इट्स अ लैम्बोर्गिनी शोरूम. अगर मैं वॉल्वो इसमें रिपेयर करूंगा और मैं इसको ठीक करूंगा, तो उसका 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 क्या नुकसान हो सकता है. उसका नुकसान ये हो सकता है, उसका नुकसान उसने खुद सोचा. उसका नुकसान ये हो सकता है कि मे बी द पीपल हु आर हैविंग लैम्बोर्गिनीज मे बी पास थ्रू इट, और वो देखे यहाँ पे वॉल्वो और ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा सा फेशिया जो है वो लिखा है कि इट्स अ लैम्बोर्गिनी शोरूम या डीलरशिप स्टोर है इसका. तो उनका तो दिमाग में ये इमेज बैठ जाएगा, बिकॉज लैम्बोर्गिनी इज नॉट फॉर द पीपल हु आर बाइंग द वॉल्वो ट्रक्स. So it's entirely different target market. So this example, what this example shows, or what this example explains, is choosing the right target market and hitting the right bullseye. So that will help us to win the race. So that's the example. Now we can talk about the 5 steps. It's basically based on the total core of this talk. What are the 5 steps through which we can identify the right customers for our business? So firstly, there is market segmentation. We all do this. हम customer profiles बनाते हैं, हम लोग market research करते हैं, we do all the things. But हम वहाँ पर रुक जाते हैं. What we need to do afterwards is step number 2. It's to select the beachhead market. Then step 3 is end user profile. After selecting the beachhead market, we will profile the customer, end user, and afterwards we will manage a total estimate, a total accessible market, that out of which population I'm selecting that particular target market. And step number 5 is to develop the persona of your customers. Okay, so step number 1 is market segmentation. And in market segmentation, what's the goal? The first goal is to understand that Lamborghini question. Either the person should repair that Volvo truck or should go towards the only selected market of Lamborghinis. So उसमें अभी हम तो interactive session नहीं कर रहे, but Imran साहब, if you are here, so what would you suggest? I'll suggest go for Lamborghini, because Lamborghini में अगर आप Volvo को लाएंगे तो वो would not be a good mix.
ओके, दैट्स गुड। सो हमारा इंटरैक्टिव सेशन अभी ये 2-3 हम लोगों तक है, बट ऑब्वियसली हमारा ये जब हम इसको लाइव स्ट्रीम में लेके चल रहे हैं और इसमें जो रिव्यूज आ रहे होंगे, वी विल सर्टेनली बी आंसरिंग द थिंग्स। अच्छा, गोल नंबर 2 इज टू अंडरस्टैंड द सेगमेंटेशन एंड गोल नंबर 3 इज टू इंटरव्यू द स्टार्टअप्स। जितने स्टार्टअप्स आपको लगता है आप जैसा काम कर रहे हैं, आप उनसे उनसे इंटरव्यू कीजिए। उनकी जो सिलेक्टेड मार्केट है वो अंडरस्टैंड कीजिए कि व्हाट काइंड ऑफ मार्केट दे आर टारगेटिंग राइट नाउ। अच्छा, प्लस इसकी जो एप्लीकेशन है, इफ वी जस्ट गो थ्रू अ लिटिल बिट मोर अबाउट मार्केट सेगमेंटेशन, सो वी ऑल नोस कि whenever we segment the market, there are certain bases to market there are certain bases to segment the market. Achha, what are those bases? These bases totally depends on what we actually want from our research of finding the customers. So it's not about that we are having a magnifying glass and we are running in the markets to explore that who is going to buy my product. It's about the simplicity of the research and the focus of your research to identify the right segment जिसके लिए आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो उसके लिए कुछ बेसिस जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उनमें हम उनके डेमोग्राफिक्स को सेगमेंट कर सकते हैं। सेगमेंटेशन उनके डेमोग्राफिक्स की बेसिस पे कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि इफ आई एम लॉन्चिंग फ्लेवर्ड जूस, सो उस जूस के लिए लोगों की एज क्या होगी, वो कहाँ पर उनकी एजुकेशन क्या होगी, उनका रिलीजन क्या होगा, वट एवर यू थिंक सूट्स योर मार्केट रिसर्च, आप उसको बेस बना के सो देन टेक दैट मैग्नीफाइंग ग्लास एंड रन इन द मार्केट एंड एक्सप्लोर दैट हु इज गोइंग टू बाय माय कंपनीज प्रोडक्ट। अच्छा, जो दूसरी बेस इसके लिए हो सकती है, इट कैन बी ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। कई दफ़ा हम लोग एरिया बाय सेगमेंट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि लाहौर में करना है, लाहौर में किन किन एरियाज को केटर करना है हम लोगों ने। फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं, पूरे पाकिस्तान को ही हम लोगों ने पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं वो सारे हमारी टारगेट मार्केट हो सकता है। पंजाब में, सिंध में, मतलब डिवाइडिंग इट, नैरोइंग द स्कोप of your research is basically the base for segmentation. ओके, सो इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद आपकी साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, आप लोग इस तरह की बहुत सी वी कैन, मतलब बेस जो है वो बेसिक हम लोग तब बनाते हैं जब हमें ये क्लियर हो कि व्हाट इज द फोकस ऑफ माय मार्केट रिसर्च एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एम आई गोइंग टू ऑफर। उसकी एक आउटलाइन आपको बड़ी क्लियर हो, टेस्टेड हो, डिजाइन थिंकिंग आप लोगों ने पहले से कर लिया है। सो जब आप उसकी टेस्टिंग स्टेज पर होते हैं, सो आप वहाँ पर जो प्रोटोटाइपिंग की आपकी स्टेज है, वहाँ पर आप इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि कस्टमर से आप वैलिडेट करवा लें कुछ कस्टमर से, और डिजाइन थिंकिंग विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। उसकी वो जो प्रोटोटाइपिंग वाली स्टेज है, दैट विल हेल्प यू आउट टू आइडेंटिफाई द राइट टारगेट मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट। अच्छा, टारगेट मार्केट का मैंने अभी नाम ले लिया है, ये नेक्स्ट स्टेप है, सेगमेंटेशन से नेक्स्ट स्टेप है। हो सकता है जब मैं मार्केट रिसर्च करूं तो मुझे लगे कि ये भी मेरा कस्टमर हो सकता है, ये भी, और 3-4 क्लस्टर्स हों लोगों के, होमोजीनियस सेट्स हो, जो मुझे लग रहा हो कि नहीं ये मेरी राइट मार्केट हो सकती है। अब उन 3 या 4 या 5 क्लस्टर्स में से भी राइट मार्केट कौन सी है, उसको हम लोग बोलते हैं बीच हेड। बीच हेड का मतलब है कि what is the exact target market of my product, उनका ओवरऑल जो मार्केट का फोटे है, व्हाट इज दैट फोटे, वो जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी हैबिट्स क्या है, उनको क्या पसंद है, उनकी डिसलाइक्स क्या है, वो कौन से मूवीज देखते हैं, वो कौन से सिनेमा में जाते हैं, ऑल द थिंग्स टारगेटेड, कहाँ पर रहते हैं, वो सब चीजें हम बीच हेड मार्केट में कर रहे होते हैं। एंड यूजुअली वी अप्लाई अ मैजडा मॉडल। मैजडा मॉडल इज द मार्केट शुड बी मेजरेबल और एक्शनेबल, मतलब वो एक्शनेबल और एक्सेसिबल होनी चाहिए आपके लिए मार्केट, आपके लिए वो प्रॉफिटेबल मार्केट होनी चाहिए, मतलब वो सस्टेनेबल मार्केट होनी चाहिए। ये ना हो कि एक दफा वो आपकी चीज को खरीद ले और उसके बाद आप अपना बिजनेस बस लेके बैठे हो एंड पीपल डोंट वांट्स टू बाय इट अगेन। सो वो जो एक्सपीरियंसेस आप दे रहे हैं उनमें भी आपको ये चीज देखना है कि देयर मस्ट बी अ सब्सटेंशियल मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट जब आप बीच हेड मार्केट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। और डिजायरेबल, उनकी अपनी डिजायर होनी चाहिए इसमें,
people must have interest in buying your product. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस जी ये market हमने select कर लिया on the basis of data, but usually startups skip one point, and that one point is कि हम लोगों को empathize नहीं कर रहे होते, लोगों की feelings को understand नहीं कर सकते. Again, it's more, these are correlated. Design thinking and customer discovery, these are correlated. So हम जब बात करते हैं empathizing की, empathizing is all about understanding the pains of people. So for अबिंदा, example, एक क्वेश्चन है जी जी, वकास पूछ रहे, isn't it better to ask our customers to survey first? customer to survey first, or we can design a survey. कि सर्वे पहले करना चाहिए. Yeah, so I told it before, market segmentation जब हम करते हैं, so market segmentation करने से पहले हम अपना पूरा market research का framework बनाते हैं. That market research framework tells us कि हमने interview करना है, हमने उनका जो है वो survey करना है उन लोगों से, what we want to actually do. वो market segmentation से पहले, this is market research is another thing. कस्टमर डिस्कवरी आपकी होगी, उसकी बेस ही मार्केट रिसर्च है आपकी. और ये जितने हम 5 अभी ये जो कोर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये 5 स्टेप्स आपके मार्केट रिसर्च की बेस पे बन रहे हैं. सो मार्केट रिसर्च पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने करना क्या है. हमने ऑब्जर्वेशंस करनी है, हमने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, हमने लोगों के पास 1-to-1 इंटरव्यूज करने हैं, अनस्केड्यूल्ड इंटरव्यूज करने हैं. व्हाट वी एक्चुअली वांट टू डू. राइट, परफेक्ट. शुड वी कंटिन्यू? यस प्लीज. ओके, सो beachhead मार्केट हमारी बेसिक टारगेट मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मैस्टर मॉडल हो गई. और इसमें भी हम लोगों ने अभी एम्पैथी की बात की थी कि एम्पैथाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग द पेन्स ऑफ कस्टमर्स. नाउ अगेन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, because your customer, in particularly when we talk about the context of our country, our customer is an informed customer. And that customer has a specific behavior, and that is, I want everything for free, because they are price sensitive people. And there is a very small market जो कि आप लोगों के quality sensitive market है, और उस quality sensitive market को आप टैप कर सकते हैं when you are hitting the niches. उसके अलावा आपके पास जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स हैं, उनके लिए तो आपको मैस मार्केट या सेगमेंट मार्केट करके ही आगे चलना है. सो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स थिंक कि हम लोग इसको किसी अपने जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का प्रोडक्ट है और उसको हमने एक स्पेसिफिक नीश के लिए बनाना है. दैट इज अनदर कॉन्टेक्स्ट. एंड सो टारगेट मार्केट आपका डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है आपकी डिजाइन थिंकिंग की जो एम्पैथी वाली स्टेज है. बिकॉज हम अपनी मर्जी से ये नहीं कह सकते कि हमारे कस्टमर को ये सब कुछ चाहिए. फॉर दैट वी आल्सो नीड टू रिसर्च. जैसे अभी वकास ने भी एक क्वेश्चन किया, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग. क्योंकि अगर हम एम्पैथाइज नहीं करेंगे, अगर हम लोगों के पास जाएंगे नहीं, उनसे पूछेंगे नहीं, उनके डिटेल्ड इंटरव्यूज नहीं करेंगे, और अपनी जजमेंट की बेसिस पे अगर हम ये कह देंगे कि इस कस्टमर को ये चाहिए, या हम उसके सामने सोल्यूशन रख देंगे सीधा सीधा जाके, सो दैट कस्टमर विल बी अ कंफ्यूज्ड कस्टमर, एंड दैट मार्केटिंग स्ट्रेटजी विल बी अ कंफ्यूज्ड एंड अनस्टेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी. अच्छा, बीचहेड मार्केट में हमारे लर्निंग गोल्स हैं कि बीचहेड मार्केट है क्या, वी हैव ऑलरेडी डन इट. उसके बाद है अंडरस्टैंड व्हाई वी फोकस ऑन वन मार्केट. हमें एक मार्केट पे क्यों फोकस करना चाहिए, हमें नैरो स्ट्रैटेजी के साथ क्यों चलना चाहिए. एंड देन वी हैव अ गोल नंबर 3, एंड दैट गोल नंबर 3 इज बेसिकली टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द बिगेस्ट मार्केट टू टारगेट. Matlab, this is not always the wisest plan, but there must be a biggest market, because the more populated that market will be, the more profitability you will be getting for your startup. But again, this is based on which category of product or which category of service you are supposed to develop or launch. अगर आप specialized product लेके आ रहे हो, so obviously for that you'll not be hitting a huge number of people. But if it's like categorically it's about variety kind of product, ये shopping product है या आपका जो FMCGs है, इस तरह का कुछ है, so for that you really need to hit a big number of market. So now it's step 3, and step 3 is end user profile. End user profile हम सब ने बनाया है, लेकिन हम लोग जब बनाते हैं इसको end user profile को, we always skip one point, and that one point is again design thinking with the context of design thinking.
एंड यूजर प्रोफाइल बनाने से पहले हमें क्या करना है, हमें सेगमेंटेशन हमने कर ली, हमने बीच हेड मार्केट अपनी सिलेक्ट कर ली, हमने मार्केट रिसर्च का एक फोकस्ड प्लान सबसे पहले बना लिया था कि हम इस तरीके से लोगों के पास जाएंगे। देखिए, एंड यूजर प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको करना है, इसमें मार्केट एनालिसिस का एक पार्ट है आपका, जिसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका कस्टमर कौन है और आपका कंपेटिटिव कस्टमर कौन है। आपका जो कंपेटिटर है या जो आप जैसे प्रोडक्ट्स और ऑल्टरनेट से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है मार्केट में, उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर कौन है, बिकॉज यू आर सपोज टू शेयर देयर मार्केट शेयर आप उनका मार्केट शेयर करने जा रहे हैं ना। सो वो वही मार्केट है या कोई और मार्केट है, कोई और लोग हैं जिनको आप लोगों ने टैप करना है। सो मार्केट रिसर्च से पता चल गया जी एंड यूजर प्रोफाइल हमारा ये है। एंड यूजर प्रोफाइल बड़ा सिंपल होता है, इसमें हम बहुत सी चीजों को पहले एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसका एक टेबल सेट बना लेते हैं, और उसमें हम लोगों ने जितनी चीजें बीचेड मार्केट और सेगमेंटेशन, जब हम लोगों ने लोगों से पूछा होता है, जब वो एम्पथाइजिंग वाली चीज चल रही होती है, वो सब चीजें चल रही होती हैं, तो उनमें हम लोग वो सब चीजों को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं और उन सब चीजों को आगे लेके चल रहे होते हैं। अब एंड यूजर प्रोफाइल जो है आपका, एंड यूजर प्रोफाइल में हमने लिखना है सबसे पहले कि मेरा कस्टमर, it's like a blur picture of your customer, not very clear but a blur picture, because इसमें भी बहुत से लोग हैं अभी, क्योंकि आपने एंड यूजर प्रोफाइल से आगे जाना है अभी, और उसमें से ये फाइंड आउट करना है कि who will be the actual target market। ये है अब वो मार्केट, वो जो पर्सोना की हमने 5th स्टेप की बात की थी। सो ये भी अभी ब्लर है, लेकिन इसमें हम एक होलिस्टिक सा व्यू देंगे कि अब मेरे जो कस्टमर्स होंगे वो लाहौर के रहने वाले होंगे, मेरे कस्टमर्स जो होंगे उनकी एज ब्रैकेट 25 years to 35 years होगी, मेरे जो कस्टमर्स होंगी उनकी इनकम इतनी होगी, वो यहाँ पर रहते होंगे, ऑल द थिंग्स वो हम लोग इसमें एंड यूजर प्रोफाइल में मेंशन कर देंगे। एंड शेयर सम ऑफ द हैंडआउट्स जिसमें प्रैक्टिकली इन सब चीजों की एग्जांपल्स भी होंगे। इमरान साहब, आई शेयर दोज थिंग्स विद यू so that the people who are here in this discussion or who are listening to us can get benefit from the real time toolkits of this particular topic or talk। So, वो हम ये फाइल अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर रहे हैं और उसके Yes, बाद ये बाद में पब्लिकली पोस्ट भी कर देंगे। ठीक है, perfect, no issue, I'm comfortable with it। थैंक यू वेरी मच मिस नमिंदा। अच्छा जी, उसके बाद हम जब बात करते हैं एंड यूजर प्रोफाइल की, देयर सम ऑफ द गोल्स। जब हम लोग इनकी बात करते हैं एंड यूजर प्रोफाइल की, लर्निंग गोल्स क्या है, या हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत क्या है, अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड टू नैरो योर ग्रुप ऑफ टारगेट एंड यूजर्स इवन फर्दर, इससे भी ज्यादा करने की जरूरत क्यों है। Learn an important tool of the trade and user profiles and continue learning from talking to other entrepreneurs। देखिए, बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम ऑल इन ऑल सब कुछ है, और वो एक टीम प्लेयर वाला जो एलिमेंट है वो मिस कर जाते हैं हम, कंसिडरिंग सम ऑफ द अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केट, के लोग चोरी कर लेंगे हमारा आइडिया, या लोग हमारी स्ट्रैटेजीज को खुद से यूज कर लेंगे। वी आर अ बिट इनसिक्योर। सो हमें जब तक इस इकोसिस्टम में रहने वाले प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करना नहीं आएगा, इनके साथ कोलैबोरेट करना नहीं आएगा, तब तक वी विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं, दे कैन गाइड यू फर्दर, बस इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टॉक टू देम, और आपका उनके साथ नेटवर्क किस तरह से आप फ्लोरिश कर रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद कुछ लेसन्स हैं जब हम एंड यूजर प्रोफाइल बनाते हैं। दीज आर वंडरफुल लेसन्स, जिनमें से ये मैं आपके साथ शेयर तो कर दूंगी, रीड इट बाय योरसेल्फ, बट वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल इज एन एंड यूजर प्रोफाइल is a description of narrowly defined subset of target end users with similar characteristics, similar needs and word of mouth। So the people here in this talk will be confused बिकॉज मार्केट सेगमेंटेशन में भी वही यही चीज कर रहे होते हैं, एंड दे ऑलवेज अज्यूम कि मार्केट सेगमेंटेशन इज somehow more about selecting your end user, or it helps us to develop the end user profile। लेकिन देखिए, मार्केट सेगमेंटेशन आप कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ योर मार्केट रिसर्च। आपके मार्केट रिसर्च की आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से लोग होंगे, कौन से क्लस्टर्स होंगे जिनको मैंने टारगेट करना है, फिर उनमें से आप बीच हेड अपना सिलेक्ट करेंगे, कोई 1 या 2 सेगमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनमें रहने वाले जो लोग होंगे वो कैसे होंगे, उनकी सिमिलर नीड्स और उनके वर्ड ऑफ माउथ और उनकी सारी वो जो
ट्रेड्स होंगी, वो हम लोग सारी जो है वो एंड यूजर प्रोफाइल में लिखे. माई अ लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस बिकॉज माई डॉटर जस्ट शी वेक अप एंड शी वांट्स a little space. Imran sir, can I take a break of 1 minute? Yes, please. So, Tabitha needed a 1 minute break. और आज की डिस्कशन हम उसी अपना डिजाइन थिंकिंग में बिल्ड कर रहे हैं. कस्टमर डिस्कवरी पे इस वक्त ताबिंदा बात कर रही हैं. डिजाइन थिंकिंग इज ऑल अबाउट एम्पैथी, प्रोटोटाइपिंग एंड स्ट्रेटजी. तो एम्पैथी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द वर्ड गो कि आपका कस्टमर कौन है. सो वंस यू आइडेंटिफाई योर कस्टमर देन यू कैन डिजाइन योर सोल्यूशन बेटर. सो ताबिंदा उसमें बहुत डिटेल में एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क आपसे शेयर कर रही हैं कि कैसे आपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है, कस्टमर सेगमेंटेशन करनी है, पर्सोनास बनाने हैं, उनको प्रोफाइल करना है. तो तमिंदा यू आर Yeah, I'm free now. ओके. Okay. प्लीज कर. So, अब हम लोगों ने जो फोर्थ स्टेप है हमारा, दैट इज टोटल एक्सेसिबल मार्केट. सी हमने एक एंड यूजर प्रोफाइल बना लिया. एंड यूजर प्रोफाइल इज अ पिक्चर. हमारे पास एक पिक्चर आ गई कि इस तरह के, इस किस्म के जितने भी लोग होंगे वो हमारी टारगेट मार्केट होगी, और उनका फिर हम लोग बाद में जो स्टेज 4 स्टेज 5 होगी उस पर हम पर्सोना एस्टैब्लिश करेंगे. सो टोटल एक्सेसिबल मार्केट विल बी बेस्ड ऑन द एंड यूजर प्रोफाइल जो हम लोगों ने बनाया होगा. वो तस्वीर लेके हम फिर जगह जगह पर ढूंढेंगे लोग कि वो कौन से लोग हैं. कैसे करेंगे ये? टैम को करने के कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, और वो जो हैंडआउट्स में आपके साथ शेयर करूंगी उसमें भी वो सब चीजें डिटेल में होंगी. एक हल्की फुल्की ओरिएंटेशन इसकी मैं दे देती हूँ. एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम ये कहते हैं कि भाई इस रोड पे हम जा रहे हैं, तो इस रोड पे देखो कि रेड कलर की गाड़ियां कितनी है. सो ही विल स्टार्ट काउंटिंग द रेड कलर कार्स. अब वो जो रेड कलर कार्स है, रेड कलर कार इज द क्राइटेरिया, और वो जो उस रेड कलर की गाड़ियों को ढूंढ रहा है और सिलेक्ट कर रहे हैं, काउंटिंग ऑन द रेड कलर कार्स, वो उनमें से उनको स्क्रीन आउट कर रहा है, और वो उस पूरे रोड पर बताएगा कि इस रोड पे मैंने इतनी गाड़ियां देखी, उन इतनी गाड़ियों में से रेड कलर की इतनी गाड़ियां थी. एक छोटी सी मिसाल है. अब टैम आपका यही है कि एंड यूजर प्रोफाइल क्लियर है, यू आर वेरी क्लियर कि आपका कस्टमर किस तरह का होगा. एक तस्वीर, एक इमेज आ गया आपके पास, एक कैटेगरी एस्टैब्लिश हो गई. अब हमने क्या करना है? अब हमने देखना है कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, out of which we will select itne number of people who will give us profit, who will be more populated, and that will be a substantial market for my product. So हमारा जो टैम है वो फिर उस पे हम लोग निकाल लेंगे, और टैम के कुछ फॉर्मूलाज भी हैं, ये सारे इन हैंडआउट्स में हमें मिल जाएंगे इंशाल्लाह. टैम के कुछ गोल्स हैं. सबसे पहला तो टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एड्रेसेबल मार्केट. सेकेंड इज टू लर्न हाउ टू एस्टिमेट टैम, how not to estimate TAM, and goal number 3 is to understand why good TAM, मतलब हमें क्यों always good TAM, bad TAM और अगली TAM क्या होता है, ये भी अभी हम लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहले लेसन जो है ना इसका TAM का, टोटल एक्सेसिबल मार्केट का, वो ये है. TAM क्या है? TAM is the amount of revenue expressed in dollars per year a business would earn if you achieve 100% market share in your chosen market. एग्जाम्पल, मैं अपने एरिया में एक लर्निंग सेंटर बनाना चाहता हूँ, या मैं अपने एरिया में एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, मैं अपने एरिया में एक छोटी सी रोटी की दुकान बनाना चाहता हूँ. अब वो रोटी की दुकान या वो रेस्टोरेंट बनाने के लिए आई नीड टू हैव अ क्लियर एस्टिमेट ऑफ माय एरिया कि हाउ मेनी हाउसेज आर देयर इन दिस एरिया. सो मुझे पता चलता है कि इस एरिया में 13,000 या 15,000 हाउसेज हैं. अच्छा, एवरेज पाकिस्तानी घर में कितने लोग होते हैं? सो वी से इसके 5 से 7 लोग एक एवरेज पाकिस्तानी घर में होते हैं. वी विल मल्टीप्लाई 5 इनटू 13,000 या 15,000 जितने घर हैं हमारे. तो वो जो हमारे पास टोटल आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा कि ये हमारा टोटल एंड यूजर है, जिसमें से इतने नंबर ऑफ पीपल विल गो फॉर डाइनिंग आउट, या वो तंदूर से रोटी लेके आते हैं, उसकी एवरेज निकालना, एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन आवर मार्केट रिसर्च सर्विस. और वो हमें पता चलेगा कि लेट्स सपोज 20% ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट वांट्स रोटी ऑल द टाइम फ्रॉम द तंदूर.
अब वो आपने एस्टिमेट किया तो आपको पता चला कि 13,000 घरों में से 3,000 घर ऐसे हैं जिनको तंदूर से बनी हुई रोटी चाहिए। 3,000 घर है तो 3,000 घरों में, एक घर में अगर 5 लोग रहते हैं, यू विल मल्टीप्लाई, तो आप लोगों के पास 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आपके पास आ जाएगा 15,000। 15,000 लोग आपसे रोजाना अगर 5 या 10 रोटियां लेंगे और एक रोटी आप 10 रुपए की दे रहे हैं, यू विल मल्टीप्लाई, तो ये आपकी 100% टैम बन जाएगा, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। कि इसको मैंने जो है ना, या टोटल एक्सेसिबल मार्केट, इसको एक्सेस करना है मैंने। फिर उसी मार्केट को, उन्हीं घरों में आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स भी फर्दर प्लान करते हो। तविंदा, इस पे अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टार्टअप्स। ये वी वुड लाइक ब्रांडिंग वाले में हम इसको फर्दर नेक्स्ट वीक में, तविंदा, इसको और आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, वहां पे हम इस पे बिल्ड करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्टार्टअप के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि उसकी मार्केट का साइज क्या है। तो आप इसको बहुत अच्छा बिल्ड कर रही हैं कि आप कस्टमर को ना सिर्फ जाने, बल्कि आप उसको साइज अप भी कर लें अपनी मार्केट को, कि आपको पता हो कि मेरी मार्केट की एग्जैक्ट साइज क्या है, डॉलर वैल्यू क्या है, पोटेंशियल कस्टमर कितने हैं। एग्जैक्टली। एंड हियर वी कम्स विद द फॉर्मूला। कैलकुलेट कैसे करना है हमने टोटल एक्सेसिबल मार्केट को। सो द नंबर ऑफ एंड यूजर्स विल बी मल्टीप्लाइड विद द एवरेज रेवेन्यू पर एंड यूजर पर ईयर। सो हमारे पास एवरेज आ जाएगी टैम की एनुअल। और टू फाइंड आउट टैम, फॉलो दीज 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं जिनका मैं कही थी कि गुड टैम, बैड टैम और एवरेज टैम बनता है आपका। सबसे पहले तो है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ एंड यूजर्स इन योर बीच हेड मार्केट थ्रू अ बॉटम अप एनालिसिस। देखिए, बॉटम अप एनालिसिस हम करते ही नहीं। हम ना एक बड़ी इंस्पायरिंग सी पिक्चर हमारे पास होती है और वी ऑलवेज परसीव्स कि ये हमारी टोटल मार्केट इतनी बड़ी होगी, और हम एक अपने आप को गलत फाइनेंशियल प्रोजेक्शन का पार्ट बना रहे होते हैं। अगर हम गुड एक्सेसिबल मार्केट चाहते हैं, सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ बॉटम अप एनालिसिस फ्रॉम द बीच हेड मार्केट, जो हमने वो टारगेट मार्केट की बात की थी, जिसको हम मेजडा मॉडल से निकालते हैं। और उसके बाद आइडेंटिफाई द एवरेज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज यू वुड जनरेट पर एंड यूजर और पर ईयर। आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि 1 साल के बाद इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट, ये सेल्स फोरकास्टिंग होगी आपकी। आप टोटल फोरकास्टिंग करेंगे कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स में बेचूंगा और कितना प्रॉफिट मुझे मिल रहा होगा, और मैंने कब कब अपनी उन स्ट्रैटेजीज को मैनोवर करना है, ये भी आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। जितना अच्छा आपका प्लान होगा उतनी ही अच्छी आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, बिकॉज द बेटर टू स्वेट इन द रूम, इट्स बेटर देन ब्लीड इन द वॉर। क्योंकि जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, वी लिटरली ब्लीड आउट। हमें नहीं समझ आती कि ये अब हमारे साथ क्या हो रहा है, और हमने तो कुछ और सोचा था, मार्केट में कुछ और हो रहा है हमारे लिए। सो बेटर ये है कि पहले अच्छा सा प्लान कर लो, स्ट्रेटेजी बना लो, ये सब चीजें, अपनी एक्सेसिबल मार्केट्स एस्टिमेट कर लो, रियल टाइम प्रोजेक्शंस पे काम कीजिए। आप अपने आप को जितने शेल्स में रखेंगे, उतना ही गलत आपके साथ फ्यूचर में हो सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी 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 प्रैक्टिकल व्हाइल कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और उसके बाद है हमारे पास लेसन नंबर 4, स्प्रेडशीट इज नॉट द राइट हैबिट फॉर अ कस्टमर। देखिए, ये लेसन है हमारा, जब हम टैम एस्टिमेट करते हैं, सो हम क्या वो ये वही बात है जो मैं आपकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की बात कर रही हूँ। तो ये कह रही हूँ कि जो हमारी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होती हैं, ये वो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस नहीं होनी चाहिए जिनको आप एक स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में बना लें और आप उसी में बैठ के मल्टीप्लाई करते रहें कि नहीं, आज इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो आ गए, मल्टीप्लाई किया टोटल प्राइस से जो हमने जितने प्रोडक्ट बेचे, और इज इक्वल टू इतना प्रॉफिट हम जनरेट करें। नहीं, वो तो आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। आपने उसके साथ साथ स्ट्रगल करनी है उस चीज की भी, कि जो चीज आप लोग साथ साथ अपने प्लान में लेके चल रहे थे। सो उसकी स्ट्रैटेजीज को साथ साथ आप लोगों ने अप्लाई करना है। ये नहीं कि एक दफा प्लान बन गया उसको साइड पे रखा और रियल टाइम मार्केट में निकले तो इट्स समथिंग एल्स। आपका प्लान जितना अच्छा होगा, उसका जितना अच्छा कंपोज्ड होगा, उतना ही अच्छा आप आगे चीजों को लेके चल सकते हैं। लेसन नंबर, और एक और चीज इमरान साहब, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ। हमारा जो बच्चा है उसका भी कसूर नहीं है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क
फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग भी कई दफ़ा स्कूल्स में भी नहीं उसको फाइनेंशियली लिटरेट करते, और जब वो वर्किंग उसमें आता है, लेट्स सपोज वो कोई जॉब कर रहा है और वहां से उसको लगता है कि नहीं मैं जॉब नहीं कुछ और अपना अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, या वो स्टूडेंट है तो उसको लगता है कि मैं कोई अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ, विदाउट एक्सपीरियंस जंपिंग इनटू द मार्केट अगेन इट्स वर्स्ट। सो अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को और फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करके आप प्लीज इन चीजों को आगे लेके चलिएगा, बिकॉज समहाउ whenever we talk about TAM, so it's more like a contributor, a major contributor in your financial projections, जो आपके फाइनेंशियल प्लान बन रहे होंगे उसमें आपका टैम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो जितना अच्छा कैलकुलेट होगा उतनी ही अच्छी आपकी प्रोजेक्शंस होंगी। और लेसन नंबर 5, is it going to be hard? Yes. Will it be well worth? Yes, absolutely. It will be very hard to calculate your TAM. ये बहुत आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है कि बस बैठे और कर लिया। We really need to go out, और खबारी वाला जो एलिमेंट है वो इसमें होगा। It's very hard, but it really worth it. Believe me. And now step number 5. It's persona. पर्सोना क्या है? पर्सोना बड़ी मजेदार चीज है। पर्सोना के कभी मैं सैंपल भी आपके साथ शेयर करती हूँ, एक एग्जांपल भी दिखाती हूँ। पर्सोना क्या है? Dive into the concept of the persona and whether you really need it. This is the goal. कि हमें पता चले कि हमें पर्सोना बनाने की जरूरत है, या हम वो जो हमने एंड यूजर प्रोफाइल बनाया था, जिसे कस्टमर प्रोफाइल हम कह रहे होते कि ये मेरा कस्टमर है, वही काफी है। ये भी अभी डिस्कस करेंगे ये इस नेक्स्ट स्लाइड में। फिर लर्न टू प्रोफाइल द पर्सोना फॉर योर स्टार्टअप्स। ये भी देख लीजिए कि आपके जो स्टार्टअप्स हैं, आपको ये बताओ कि मैंने उन स्टार्टअप्स के जो एंड यूजर्स हैं उन प्रोफाइल्स का पर्सोना बनाना है और कैसे बनाना है। लर्न जस्ट हाउ वेल यू नीड टू नो योर पर्सोना, और कितना जरूरी है जो पर्सोना आपने बनाया है उसको अंडरस्टैंड करना। इसका मतलब पता है? इसका मतलब ये है कि वो पर्सोना इज इक्वल टू योर कस्टमर। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। ये अब पर्सोना बन जाएगा तो फिर हम उसको दिल से लगा के रखेंगे, नहीं ये मेरा कस्टमर है, ये पर्सोना है, मैंने इसकी ये पेन पॉइंट्स है, ये उसकी लाइक्स है, ये उसकी डिसलाइक्स है, मैंने इन सब चीजों का ख्याल रखना है। और अगेन डिजाइन थिंकिंग के इसमें जो आपका एम्पैथाइजिंग, वो जो आइडेंटिफिकेशन वाला फेज है, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। लेसन नंबर 1 जो आपका पर्सोना सिखाता है, द पर्सोना इज द वन पर्सन दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स योर एंड यूजर प्रोफाइल। पर्सोना ये है कि आप एक तस्वीर बना देते हैं, एक तस्वीर, और उस तस्वीर के साथ हर चीज अपने कस्टमर की, जो बंदा वो देखे ना उसे क्लियर नजर आए। एक फॉर एग्जांपल अगर कोको कोला का कोई कस्टमर है और कोको कोला के कस्टमर का पर्सोना हम देखना चाहते हैं, तो उस पर्सोना को, एक पर्सोना को देख के हमें ये समझ आ जाए कि कोको कोला का कस्टमर किस तरह का होता है। वो बड़ा एनर्जेटिक होता है, वो यंग होता है, वो चीयरफुल होता है, वो केयरिंग होता है, वो सब चीजें उसके एक पर्सोना के अंदर लिखी होंगी हम लोगों ने। और दैट पर्सोना विल हेल्प यू आउट इन द ब्रांडिंग अगेन। जब आप अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और जब आप उसमें ब्रांड पर्सोनिफिकेशन करते हैं। सो ब्रांड पर्सोनिफिकेशन होती ही तब है जब आपके पास एक अल्टीमेट पर्सोना अपने ब्रांड का अवेलेबल होता है। पता होता है कि ये वो एंड कस्टमर है जिसने मेरा प्रोडक्ट खरीदना है, या ये वो है जो मेरा एग्जिस्टिंग बायर है। लेसन नंबर 2 इज योर पर्सोना इज योर वर्थ नॉर्थ स्टार। नॉट अच्छा, नॉर्थ स्टार क्या है? नॉर्थ स्टार इसको इसलिए कह रहे हैं, ये आपका लकी चार्म है, आपका पर्सोना। आपका पर्सोना आपको एग्जैक्ट फोकस देता है कि अब मैं, ये पर्सोना है, ये पर्सोना इज इक्वल टू द पिक्चर, एक स्टैंडर्ड पिक्चर, आदमी है, औरत है। कौन यूजुअली आपका प्रोडक्ट खरीदता है, वो कैसा है, वो कहाँ पे रहता है, वो उसकी हैबिट्स क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, वो सब चीजें उसमें होती है पर्सोना में। और फॉर एवरी पर्सोना देयर इज एन एंटी पर्सोना। सो एक एंटी पर्सोना भी होता है। एंटी पर्सोना ये होता है जो बिल्कुल अगेंस्ट होता है उसके, जो आपका प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहता, उसके लिए आपका प्रोडक्ट एक टोटली अनसॉर्ट किस्म का प्रोडक्ट है। ना वो कभी उसके बारे में ढूंढना चाहता है, सर्च करना चाहता है, ना ही वो उसको उसके बारे में कई दफा जानता है। सो एंटी पर्सोना भी बना के रखिए, इट विल हेल्प यू आउट। क्योंकि कई दफा एंटी पर्सोना जब हम एक्सपेंशन पे जाते हैं तो एंटी पर्सोना ही हमारी अगली प्रोफाइलिंग में हमें हेल्प कर रहा होता है।
And lesson number 4, your search for persona is an iterative process. देखिए, persona एक दफा बना लिया, बस ये क्लियर पिक्चर है, इसी तरह का हमारा कस्टमर है, आपका कस्टमर मिलेनियल है, अगर मिलेनियल की तो हैबिट्स ही बड़ी चेंजिंग हैबिट्स है, वो तो कंटिन्यूअसली अडेप्ट करते हैं चीजों को और बड़ा डायनामिक किस्म का कस्टमर है. सो अगर आप इस प्रोसेस को, पर्सोना डेवलपमेंट के प्रोसेस को, या पर्सोना जब आप उसका फाइनल कर रहे होते हैं, उसको अगर आप आइटरेटिव नहीं रखेंगे और आप उसको अगर डायनामिक नहीं रखेंगे बेस्ड ऑन द पीपल दैट यू आर टारगेटिंग, सो पिटेगा स्टार्टअप भी, क्योंकि उसकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आएगा. और लेसन नंबर 5 इज द पर्सोना ब्रिंग्स यू योर टीम टुगेदर. टीम को पता है ना कि इस तरह का कस्टमर है सारा, और यही वो कस्टमर है जिसको मैंने टारगेट करना है. तो एक स्ट्रीम में, एक डायरेक्शन में सब लोग भाग रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता कि एवरीबडी इज रनिंग इन देयर ओन डायरेक्शन. सो द टीम वर्क विल बी सर्टेनली एक्सेलरेट जब आपका पर्सोना डेवलप हो जाता है. दिस इजंट अ गुड बाय. व्हाट वी हैव लर्नड सो फार, लेट्स सी व्हाट यू हैव लर्नड. यस, लेसन नंबर 1, फोकस एंड फोकस. और ये इसकी एग्जांपल है. एग्जांपल आप खुद देखिएगा, इट्स अ बिट कैजुअल. एंड रिमेंबर, एज विद ट्रू लव, समटाइम इट टेक्स सम आइटरेशंस टू फाइंड योर कस्टमर्स. कई दफा प्रोसेस चेंज करना होता है. जरूरी है कि अगर हमने इंटरव्यूज पहले अपने रिसर्च फ्रेमवर्क में लिखे हैं, तो हम इंटरव्यूज को ही आगे लेके चले. हो सकता है हमारी कोई स्टेज ऐसी आए जहाँ पे हमें चीजों को थोड़ा सा चेंज करना पड़े, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस. जैसे अभी ये पेंडेमिक है, तो इस पेंडेमिक में बहुत से स्टार्टअप्स ने बहुत सी स्ट्रैटेजीज को चेंज किया. So buckle up, my friends. The journey is just beginning. Thank you very much. Thank you very much, Tavinder. It was a great session, especially because आपने तो इसको बहुत अच्छे लेवल पे बिल्ड किया. I'm really happy. हम तो आज चाह रहे थे कि ये डे 1 है डिजाइन थिंकिंग का, तो एक इंट्रोडक्शन हो कि आपने कस्टमर सेगमेंट लेना है. लेकिन ये चूंकि दिस इज रिकॉर्डेड और ये सारा आपने स्लाइड पे शेयर कर दिए, ये स्टार्टअप्स के साथ रहेंगे whenever they are into the next phase, और वो वाकई मार्केट अपनी बिल्ड करने जा रहे हैं और उन्होंने स्पेशली इन्वेस्टर पिच डेक बनाना है, तो उनको अपनी मार्केट साइजिंग करनी है, टाइम एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है. सो स्टेज पे डेफिनेटली दिस इज सुपर हेल्पफुल. आई एम रियली हैप्पी कि आपने इसको डिटेल में बिल्ड किया है. थैंक यू वेरी मच तविंदा फॉर अ ग्रेट सेशन. Thank you so much, Imran Saab. Thank you, Bed Saab, and thank you, Imran Saab. Gee, thank you, Tavinder. It was a wonderful thing, and especially two things which I liked the most were absolute openness and forthrightness, in which you not only said that you will be sharing all your handouts, and I think it was the way it was presented. There was nothing you actually tried to hide, and I'm sure you will become a very wonderful, because the name of the game from our side is collaboration. Actually, the game is too big. So even if we have a small piece of it, it will be good enough for everyone. Yes. So therefore, collaboration is the name of the game. Irrespective whether you are in Superior, you are in LGU, or for that matter, CGI is wherever they are. We are trying to build up all this, and as you might have been knowing if you have been following out this thing, we are looking at two objectives. The biggest objective is 500 million knowledge economy for Pakistan by 2030. Wonderful. And let me assure you, 10 years, although ambitious, but 10 years is also a very long time. And we have started this. And second thing is that we are going to make this effort as a more practical effort than theoretical. But they both go hand in hand. For example, today it was a wonderful resource, which I'm sure people we bring in here are more practical and who are very successful. And notwithstanding that you are also one of those successful entrepreneurs, you have your own companies, and I mean you are doing so many jobs simultaneously. I don't know how do you justify them, but obviously your way of delivery very clearly showed, and your confidence showed that you are handling them well and proper. Because I only know you because of the Spirit connection, but I think the other things are also moving ahead. Because during your lecture, I was just going through most of these innovations and all that stuff, and terrestrials and whatnot. But thank you very much, and I think this is the spirit. This is the spirit people actually. You have been able to sell it to your customers. Let me tell you also. Exactly. But I just have one question. Do you have? I mean, what is the number of
startups you had started, and what is the total sort of a rough revenue which was generated by these startups? Because we are more concentrating on revenues. I want to actually negate this point of view. I want, for example, the services might not be actually negation, but it will be provision of a lot of jobs. So job opportunity provision is also a big issue with us, because the more we provide the jobs, and those jobs are maybe not very extreme money-making things. So I think our overemphasis of just money-making would actually derail us from our main secondary objective, which is actually the population employment. So population employment is, let's say, one person actually employs about 20 people. He makes money, he distributes this money to them. So what he has done is he has actually, as a startup, he has also instigated some future startups within his that thing, and they will make lead from themselves. So this will be a snowball effect which will keep multiplying over a period of time. This is what is our concept. So how do you say on this? How do you take on this? That what is the number of startups you made, and what is your plan, and how much revenue these people have generated? Okay, so Ubaid sir, Superior University mein, I'm working with the Center for Entrepreneurship. Its name is ComAsset, and ComAsset has its own unique ecosystem, entrepreneurial ecosystem, in which we are not only focusing on incubation. I told Imran sir before, because we met before, so I told him that in our unique entrepreneurial ecosystem, we got different phases and different stages. For example, we train the students and faculty. For that, we have an education unit. Its name is ETTP and SEP, Entrepreneurial Teaching and Training Program for the students and faculty, and Social Entrepreneurship Program for the students and faculty. Out of which we are currently hitting 35 startups right now who are working, and they are earning more than 40 million. अभी जो इसका 4 साल का एस्टिमेट हमारे पास आया है, दैट इज द करंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, profits, revenues they are earning out of it. So some of the startups, you must be knowing them. For example, if I talk about iAutomate, so it's a national startup now. Abhi AIMS Dubai hua, so they got shortlisted in that also. Phir Geneva mein jo hua tha, wahan par bhi wo gaye the. So they are the proud of Superior University. Whenever we talk about education, and the next stage to education, it's incubation, because Superior is currently focusing on another domain, and that domain is totally untapped right now. Untapped. Why it's untapped? Because we are focusing on the grades of the students. So what about the students who are not interested to study, yet they have some businesses, family businesses to run, or maybe they have some ideas. एंड कर लेते हैं, ऑफलाइन बात कर लेते हैं सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू वेरी मच फेलोज, और कल मिलेंगे हम डिजाइन थिंकिंग डे 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच Sabinda once again for joining us. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Imran sir. thank you, keep it here.